ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایندھن کے مناسب ذخائر موجود ہیں اور حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی کے نفاذ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ انٹیلیجنس بیورو نے حکومتی کفایت اور سادگی اقدامات پر رپورٹ پیش کی، جبکہ ملک میں ایندھن کے ذخائر اور کھیپ میں بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مسافر بسوں کو ماہانہ 1 لاکھ روپے، منی بس اور ویگنوں کو 40,000 روپے، مال برادر گاڑی کو 80,000 روپے اور ڈیلیوری وینز کو 35,000 روپے سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں اضافہ روکنے کے لیے ٹرکوں کو 70,000 روپے ماہانہ سبسڈی دی جا رہی ہے اور یہ رقم ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے فراہم کی جائے گی تاکہ نظام میں شفاعت برقرار رہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پیٹرول لیوی پر فی الفور 80 روپے فی لیٹر کی کمی کی گئی ہے، جبکہ پاکستان ریلوے کو 6 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے۔ مسافر ٹرکوں اور مال بردار گاڑیوں کو کرایوں میں بھی اضافہ کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے باعث عوام کو ریلیف فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ٹرانسپورٹرز کو دیا جانے والا پیکیج اس لیے ہے تاکہ کرایوں میں کوئی اضافہ نہ ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی عوام کو کرایوں میں ریلیف دینے کے حوالے سے اہم پریس کانفرنس۔ کہا، خطے کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ضروری ہے کہ عوام بھی تعاون کرے اور پوری قوم مسائل کو سمجھ کر سادگی اپنائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے زور دیا کہ کراچی میں بجلی، گیس اور پیٹرول کی بچت بہت ضروری ہے۔ خوشی ہے کہ ٹرانسپورٹرز نے حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کی حامی بھری۔ انہوں نے بتایا کہ ٹرانسپورٹرز کے ساتھ میٹنگ کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں غریب عوام سے 28 فروری والا ہی کرایہ وصول کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کا عوام کے لیے بڑی سبسڈی پیکج کا اعلان۔ بسوں اور ٹرکوں کے کرائے بڑھانے سے روک دیا گیا۔ فی الفور سبسڈی دی جا رہی ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ اور مال بردار گاڑیوں کو بھی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر IT شہزاد فاطمہ کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ صرف رجسٹرڈ گاڑیوں کو سبسڈی دی جائے گی۔ سبسڈی حاصل کرنے کے لیے ایکسائز میں رجسٹریشن لازمی ہے۔ وزارت IT، خزانہ اور اسٹیٹ بینک مل کر کام کر رہے ہیں۔ ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے سبسڈی ٹرانسفر کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر مملکت بلال اظہر بولے کہ خطے میں کشیدگی کے باعث عالمی معیشت دباؤ کا شکار ہے۔ پاکستان قائم امن کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ بہترین حکمت عملی سے پیٹرول مصنوعات کے بلا تعطل فراہمی جاری ہے۔ 3 ہفتوں تک پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھائی گئیں۔ آپریشن سندور میں ذلت آمیز شکست اور شدید سفارتی تنہائی کے بعد بھارت کا ایک اور فالس فلیگ ڈرامہ بے نقاب ہو گیا۔ بھارت نے مغربی بنگال، آسام اور دیگر ریاستوں میں انتخابات قریب آتے ہی فالس فلیگ ڈرامے کے نئے سلسلے کا آغاز کر دیا۔ جیلوں میں قید بے گناہ افراد کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی سفارتی کامیابیوں اور عالمی منظرنامے پر مرکزی حیثیت سے مودی سرکار اور گودی میڈیا تذبذب کا شکار ہو گئی ہے۔ بھارتی وزیر دفاع کی گیدڑ بھبکیوں کے ساتھ الیکشن قریب آتے ہی پرانی پلے بک کے مطابق فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہی ہے۔ گودی میڈیا کبھی پاکستان کی دیوالیہ ہونے اور کبھی سفارتکاری پر گمراہ کن بیانیاں تشکیل دے رہا ہے۔ مزید بتایا کہ اس سے قبل سفارتی ناکامی چھپانے کے لیے بھارتی وزیر خارجہ نازیبا اور غیر اخلاقی الفاظ کا استعمال بھی کر چکے ہیں۔ بھارت نے پہلگام جیسا فالس فلیگ آپریشن کیا تو اس بار ہم انہیں کلکتہ تک پہنچا کر آئیں گے۔ بھارت بہکلاہٹ کا شکار ہے اور حواس کو بیٹھا ہے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں ترقیاتی منصوبوں کے افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا کہ ایران اسرائیل جنگ کے اثرات کا ہمیں طویل عرصے تک سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران اسرائیل کی جنگ کے اثرات سے نپٹنے کے لیے کئی کھرب روپے کی ضرورت پڑے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال سیلابی پانی کی نے تباہی مچائی ہے۔ ہم شہر کے مسائل حل کرنے کے لیے ہیں۔ شہر کو سیلابی پانی سے محفوظ رکھنے کے لیے اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ہم شاہراہوں پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے۔ سیکیورٹی فورسز نے کل عدم تحریک طالبان افغانستان کے دہشت گرد حبیب اللہ لالو کو گرفتار کر لیا۔ حبیب اللہ پہلے بھی گرفتار ہو چکا ہے اور 2 FCA اہلکاروں کی شہادت میں ملوث رہا۔ ملزم کا بھائی افغانستان میں کالعدم TTP کا کمانڈر ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ حمزہ شفقات کی پریس کانفرنس۔ کہا، دہشت گرد حبیب اللہ نے کابل سے دہشت گردی کی تربیت حاصل کی اور جعلی تذکرے سے پاکستان میں داخل ہوا، جبکہ کراچی میں رشتہ داروں کی مدد سے شناخت
शनाख्ती कार्ड भी बनवाया। गिरफ्तार मुलजिम दहशत गर्दी के साथ मुनशियात फरोशी में भी मुलव्वस पाया गया। मजीद 3 अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया है। अब तक 9,60,000 अफगान बाशिंदों को वापस भेजा जा चुका है। अफगानिस्तान की सरजमीन एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, जबकि अफगानिस्तान अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लागू की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि भारत के 18 कौंसल खाने पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। भारत अपनी जगह में शिकस्त की खौफ को मिटा नहीं पा रहा है। मुल्क दुश्मन अनासर मुखालिफ साजिशों में मसरूफ़ है और इनको नाकाम बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, मगर मुल्क के मफाद में इक़दामात करने के पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत है और सिक्योरिटी फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसी, पुलिस और आवाम की कुर्बानियों की बदौलत मुल्क महफूज है। ईरान में तबाह तैयारे का दूसरा अमरीकी पायलट भी बाजियाब करवा लिया गया। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में तबाह होने वाले तैयारे F-15 के वेपन ऑफिसर को बहिफाजत रेस्क्यू करने की तस्दीक कर दी। कहा, हमारा बहादुर कर्नल अब बिल्कुल महफूज है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सोशल ट्रूथ पर अपने पैगाम में कौम के नाम पैगाम जारी किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान अमरीकी फ़ौज ने तारीख का सबसे बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है। वो अब बिल्कुल महफूज हैं और ये बहादुर सिपाही ईरान के ख़तरनाक पहाड़ों में दुश्मन के इलाके के पीछे मौजूद था। सदर ट्रंप ने कहा, मेरे अहकामात पर अमरीकी फ़ौज ने दुनिया के मुहलिक तरीन हथियारों से लेस दर्जनों तैयारे भेजे ताकि पायलट को वापस लाया जा सके। ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी एयरफोर्स ऑफिसर की तलाश में शरीक एक अमरीकी तैयारा तबाह कर दिया गया है। पासदार इनकलाब ने दावा किया है कि अमरीकी तैयारे को इस्फहान में मार गिराया है। अमरीकी C-130 तैयारे के साथ ड्रोन्स भी तबाह किए गए हैं। रूसी टीवी ने पायलट की तलाश के मकाम पर मुश्तबा हेलीकॉप्टर गिरने की वीडियो भी जारी कर दी है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि 2 ट्रांसपोर्ट तैयारे जो कमांडोज और एयरमैन के महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए थे, ईरान ने एक दूर दराज अड्डे पर फंस गए हैं। अमरीकी एहलकार के मुताबिक बाद अज़ां 3 नए तैयारे भेजे गए ताकि अमरीकी अफवाज को वहां से निकाला जा सके। कमांडोज ने दोनों ख़राब तैयारों को तबाह कर दिया ताकि वो ईरानियों के हाथ ना लग सके। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कौंसिल लोकल गवर्नमेंट के चेयरमैन को धमकी आमेज खत मिलने का वाक़े की तहकीकात के लिए 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई है। आपको बताते चले कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कौंसिल लोकल गवर्नमेंट के चेयरमैन को धमकी आमेज खत मिलने का वाक़े की तहकीकात के लिए 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ हबीब से। जी आरिफ, आगाह खींचेगा। जी बिल्कुल, कराची का इलाका है जहाँ पर एपल कोर्ट के जज को धमकी आमेज से खत मौसूल हुआ और इनके चैम्बर में इनके स्टाफ की से मौसूल हुआ। ये उसको मिला, जिसके बाद पुलिस की जानिब से 4 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दी गई, जिसमें आरामबाग के SIO इंस्पेक्टर औरंगजेब और दीगर जो DSP आरिफ उस्मान है उनको तहकीकाती टीम में शामिल किया गया है, जो इसकी तहकीकात करेंगे। और तहकीकाती टीम ने जो मुतल्लिका जो जज साहिबान हैं उनसे भी मुलाकात की है। जी बहुत शुक्रिया आरिफ, तफसीलात साझा करने के लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बाजोड़ जिरगे में आमद हुई और जलसा बदनज़मी का शिकार हो गया। कवरेज के लिए आने वाले सहाफ़ियों को पंडाल में दाखिल होने से रोक दिया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मौजूदगी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तहरीक इंसाफ के कारकुनान आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे पर डंडे बरसा दिए। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दौरा बाजौड़ के मौके पर सहाफ़ियों से बदतमीजी, मुकामी सहाफ़ियों को अंदर जाने से रोक दिया गया। सहाफ़ियों को कवरेज की इजाजत नहीं दी गई। सहाफ़ियों ने पंडाल में दाखिल होने के लिए लाख जतन किए, मगर पुलिस ने एक ना सुनी और ग्राउंड के गेट पर खड़े सहाफ़ियों को चलता कर दिया। सहाफ़ियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि PTI बाजौड़ में अपनी नाकामी छुपाने के लिए मीडिया को महदूद कर रही है और कवरेज भी नहीं करने दी गई। ये हमें यहाँ पे जो लिस्ट किया है उसके अलावा मैं किसी को नहीं छोड़ सकता। ये ठीक है, वो दूसरे गेट से आप आ जाएं या उस गेट से आप आ जाएं।
दूसरी जानिब वजीर आला सुहेल आफरीदी की मौजूदगी में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में तहरीक इंसाफ के कारकुनान आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे पर डंडे बरसा दिए और कुर्सियों का आजादाना इस्तेमाल करते रहे। लोगों ने बीच बचाव करवाने की भरपूर कोशिश की, मगर झगड़ा बढ़ गया। बिलाखिर पुलिस ने झगड़ा करने वालों को बाहर निकाल दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है, जिसलिए गिरजाघरों में दुआया तकरीबात का अहतमाम किया गया है। इस मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मसीही बिरादरी को मुबारकबाद पेश की है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है, ये दिन हमदर्दी, उम्मीद, तजदीद, निजात और अच्छाई की बुराई पर फतह के वाज़ेह पैगाम देता है। मसीही मर्द और ख़वातीन हमारे स्कूल, अस्पताल, सरकारी इदारों और मुसल्लह अफवाज में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान में मसीही बिरादरी को कदर और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुआ गो हैं कि खुशियों का ये दिन मसीही बिरादरी हमारे मुल्क और दुनिया भर के लिए अमन, इस्तेकाम और खुशहाली की नवीद लेकर आए। मौजूदा कशीदा हालात में तमाम मज़ाहिब की अमन की तालीम और तरबियत और बहुत ही अहमियत इख्तियार करेगी। तो उधर मकबूजा जम्मू और कश्मीर का मसला 7 दहाइयों से आलमी ज़मीर पर मुसलसल दस्तक दे रहा है। गजा के मजलूम मुसलमानों की बेचारगी आलमी यौम ज़मीर मनाने वालों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का आलमी यौम ज़मीर पर पैगाम। बोली, जंगों के खात्मे और पायदार अमन के लिए हर मुल्क को, कौम को अपने ज़मीर की आवाज़ सुनना होगी। इंसानी फलाह बहबूद के लिए हमदर्दी का एहसास ज़मीर में बरकरार रहना ज़रूरी है। 2026 के आलमी यौम ज़मीर का थीम बेहतर मुस्तकबिल के लिए होशमंदाना फ़ैसले हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद कहा, इंसानियत की बका के लिए साकनान अर्ज़ का ज़मीर ज़िंदा रहना ज़रूरी है। इंसानी ज़रूरतों के दरमियान ज़मीर के एहसास को बरकरार रखना ही इंसानियत है। पंजाब को मंशियात से पाक करना मरीम नवाज़ हुकूमत की पहली तरजीह है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि दीगर जिस पंजाब और श्रीलंका के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में इंसदाद मंशियात और मंशियात के आदी अफराद के इलाज मुआलजे के प्रोग्राम पर भी गुफ्तगू हुई। अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब हुकूमत का मंशियात फ़रोशों के हवाले से मौक़िफ़ वाज़ेह है। अब पंजाब में मंशियात फ़रोशों के लिए कोई जगह महफूज नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तालीमी इदारों में मंशियात के तदारुक के लिए मुहिम चलाई गई है और नौजवान नस्ल को नशे जैसी लानत से महफूज रखना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब हुकूमत मंशियात के मुस्तकिल तदारुक और आगाही के लिए ड्रग एडवाइजरी हब का भरपूर साथ दे रही है। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। कराची के इलाके तारिक रोड पर बरसात के दौरान चलती गाड़ी के धंसने का वाक़या पेश आया था। मुतासरा सड़क के तामीराती काम का आगाज़ कर दिया गया। कराची के इलाके तारिक रोड की सड़क पर 2 रोज़ कबल चलती कार धंसने का वाक़या पेश आया। मुतासरा सड़क पर हैवी मशीनरी की मदद से खुदाई का सिलसिला जारी है। तामीराती काम के लिए सेवरेज के पाइप पहुँचा दिए गए हैं। तरक्याती कामों के बायस अल्लाह वाली चौरंगी से लेकर लिबर्टी सिग्नल तक ट्रैफिक एक ट्रैक पर चल रही है। हुकाम के मुताबिक सेवरेज के काम में तकरीबन 2 रोज का वक्त दरकार होगा। मुल्क के मौसम के हवाले से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान भर में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में ओले पड़े और बारिश से मौसम सर्द हो गया। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, सरगोदा, गुजरात, सियालकोट और गुजरावाला में भी तेज़ बारिश हुई। मियाँ वाली में कंडल छरा वाले के मुकाम पर दरियाए करम में तुग़यानी से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। पानी घरों में दाखिल हो गया। दूसरी जानिब नारान, सवात, बाबूसर टॉप और नांगा बरगर पर भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश हुई। पारा चनार में दरियाए कुरम पर पुल से मुल्हिक सड़क पानी में बह गई। मकान की छत और आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। खैबर में पाक अफगान शाहराह पर गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश का सिलसिला जारी है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में 6 से 9 अप्रैल तक बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का भी इम्कान नजर आ रहा है।
आइंदा दिनों में सिंध के मुख्तलिफ अजला में मुतवक्के बारिश के पेश नज़र तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया गया है और हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं ताकि शहरी और किसानों को किसी किस्म के नुकसान से महफूज रखा जा सके। सीनियर वजीर सिंध शर्जिल इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि सक्खर, कश्मोर घोटकी, जामशोरो, शिकारपुर, जैकोबाद, लाड़काना और कंबर शहदाद कोट में बारिश और बाज़ इलाकों में ज़ालाबारी की पेशगोई की गई है। मुमकिन बारिशों का सिलसिला 6 अप्रैल को शिद्दत इख्तियार कर सकता है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि शहरी इलाकों में नकासी आब के मौसम इंतजामात और हसास ढांचों और खड़ी फसलों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशगी इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया, बल्दियाती इदारे, रेस्क्यू सर्विसेज और दीगर महकमा मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हैं। उन्होंने नशीबी इलाकों में रहने वाले अफराद को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत भी की। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 82वां इजलास हुआ। माली साल बराए 2024-25 के सालाना ऑडिट मालियाती स्टेटमेंट्स की बाज़ाबता मंजूरी दे दी गई। इजलास में ICC ग्लोबल एंटी करप्शन कोड के मुताबिक पीसीबी के प्रोसीजरल रूल्स, सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के साथ क्रिकेट स्टेडियम जद्दा की डेवलपमेंट के लिए ताउन के हवाले से इजहार दिलचस्पी और जोग्राफियाई हदूद की रोशनी में लाहौर के जोन्स की दोबारा हदबंदी और नामों पर नजरसानी की मंजूरी दे दी गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है 2 बरस के दौरान अब्दुल्ला खुरम नियाज ने डोमेस्टिक क्रिकेट के फरोग के लिए दिन रात मेहनत की। PSL सरमायाकारी के लिए बेहतरीन क्रिकेट और मार्केट बन चुका है। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब PSL दुनिया की नंबर 1 लीग बनेगा।